Hello students, and welcome back to the class. My name is Rajvardhan and I'm your maths teacher for today's class. और आज हम जो है काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. So complex number is a new concept for you. You already have learned something called as a real number till your class 10. So it's entirely new family of numbers that we are going to study in our class 11. So let's understand what is complex number and how it is different from our normal real numbers. So before I tell you about the complex number, let me give you a brief introduction about what's it going to be like in this chapter. So imagine that you already have learned something called as real numbers in your class 10. And what if I tell you, if I add another family of imaginary numbers and club them together, दोनों को एक साथ जोड़ दिया, तो एक क्या हो जाएगा? एक बड़ा सा फैमिली बन जाएगा, फैमिली ऑफ नंबर्स, और उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? तो इस चैप्टर के एंड में you'll have a complete knowledge of what complex number is, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनको हम नॉर्मल एक्स वाई प्लेन में दिखाते हैं या उनका कोई अलग प्लेन होता है, that we are going to learn in a while. So without a further ado, let's start today's session. Now, before we see what are the topics that we are going to learn, let's have a simple equation. It's a quadratic equation we have learned in class 10. Now, can you tell me what are the roots of this equation? Are they real and equal? Are they real and distinct, or are they non-real? Right. So you already have learned something like this. How do you find the roots of this equation? For that we have simple formula minus b plus minus square root b square minus 4ac by 2a. So इस तरीके से हम रूट्स निकालते हैं, बट वी जस्ट नीड टू चेक कि रियल है, इक्वल है या डिस्टिंक्ट है. तो उसके लिए हमें बस ये काम आएगा जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, राइट? तो इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से मैं क्या करूंगा? b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. यही तो अपना डिस्क्रिमिनेंट होता है, हमने क्लास 10 में पढ़ा था, राइट? कुछ नया नहीं है इसमें. तो b स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन में b जो है तुम्हारा वो है 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 4ac. तो क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया -3. तो ये जो -3 है, what does it represent? It represents that the roots, they are not real. They are not real. So option C is the correct one. So this not real, how do we define not real? So either it's going to be imaginary or it's going to be a complex number. तो ये क्या है हम अभी देखेंगे. तो ये जो complex number वाला टर्म है, तुमने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का 10th में पढ़ लिया था, पर तुम्हें नहीं पता था कि नॉन रियल का मतलब होता क्या है. That is exactly what we are going to study now. So let's move forward and let's see what are the critical topics that we have here. So now we have complex number application. The application can be used for 2D geometric operation. They can be used to derive many trigonometric formulas or identities, and it is also used in multinomial expression, right? So these are just a basic application कि हम complex number को यहाँ use कर सकते हैं, right? So now that we have application, now this is what I was talking about. I was talking about the content part. So these are the critical topics that we are going to study: iota and powers of iota, and describing complex number and its algebra, right? So these are the two first topics that we are going to learn. तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयोटा क्या होता है और पावर्स ऑफ आयोटा क्या होता है. सो दिस इज लाइक द बेसिक्स ऑफ योर दिस चैप्टर. और जिनको जिनको मैथ्स पसंद है उनके लिए ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्निंग न्यू नंबर सिस्टम, और वी आर एडिंग अप टू आवर नॉलेज वी हैव ऑफ नंबर सिस्टम. एंड उसके लिए ये जो है काफी बेसिक सा होने वाला है, और बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है.
Why important है? Because whatever these two things you are going to learn, you are going to apply throughout class 11. और ये चैप्टर बाद में जैसे जैसे मुश्किल होगा उससे पहले तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? तो इसी के लिए ये दो जो है बेसिक कॉन्सेप्ट, आयोटा, पावर्स ऑफ आयोटा और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स अलजेब्रा, हमने 10th में भी पढ़ा था रियल नंबर क्या होते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि रियल नंबर का अलजेब्रा कैसे होता है, उनको ऐड कैसे करना है, सबट्रैक्ट कैसे करना है। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी खुद का अलजेब्रा है, वो हम पढ़ लेंगे। सो लेट्स लर्न एंड लेट्स स्टार्ट विद आयोटा एंड व्हाट इज पावर्स ऑफ आयोटा। Right. So far we have seen in our quadratic equation inside root there's something like this, root 3, right? So what if instead of root 3 I write some negative number, square root of -1. So ये जो square root of -1 है ना, that is nothing but iota, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, सो हमें उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो हमने उसको क्या कह दिया? हमने उसको कह दिया भाई तुम्हें हम कहेंगे आयोटा। तो ये जो आई है दैट इज योर आयोटा, तो ये जो -1 हो गया दैट इज योर आई, एज सिंपल एज दैट, देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स हियर, राइट? सो दिस टर्म व्हेनेवर यू सी स्क्वायर रूट ऑफ -1 you are going to call it iota, right? So now that we understand what is iota, let's have look over here. This is the same thing I've told you. Iota is nothing but square root of -1, right? So let's see. ये माइक क्यों अटक गया? Okay. Now we know that the real number -1 is not defined, but in complex numbers we are going to define it and its value is called iota. The same thing again I've explained you what is I, and it is nothing but square root of -1. Now imagine this part, square root of -4. So can I write it in terms of iota? Yes, of course I can. So how can I write it? हमें पता है कि square root of 4 कितना होता है? 2 होता है, राइट? तो स्क्वायर रूट ऑफ -4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4, सॉरी, लेट मी इरेज दिस पार्ट, इट शुड कम इन द सेम स्क्वायर रूट साइन, राइट? तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसी को मैं लिख सकता हूं 2i. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इट इज ट्रू, राइट? तो अभी हमने देख लिया कि आयोटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये जो चार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ये चार्ट तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा। हाउ? आई नो दैट आयोटा का पावर 1 मैंने रेज किया, सो आयोटा पावर 1 विल बी आयोटा ओनली। यस, काफी सिंपल सी बात है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नाउ लुक एट दिस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर को क्या करूंगा मैं? अगर i तुम्हारा -√1 है, रूट ऑफ -1 है, तो i स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर रूट साइन गायब हो जाएगा, दिस स्क्वायर रूट साइन विल गो अवे, राइट? सो आई कैन राइट इट एज -1, as simple as that. So value of I square or iota square will be 1 -1. Am I right? Am I right? Yes. Then what about I cube? You just multiply this by I. So this will become -i. So iota cube is -i. Now what do you think, what will be the value of iota power 4? Iota power 4 will be, again you multiply this I cube by I, you get +1, right? So the value of iota raised to 4 is +1, right? So अभी तक हमने जो देखा काफी सिंपल सा था, बेसिक सा था, पर यही तुम्हें काम आने वाला है। So iota raised to 4 is 1. Now what will happen if I write iota raised to 5? Iota raised to 5 हो जाएगा, again iota raised to 6 क्या हो जाएगा? You can calculate by yourself, अपने नोटबुक में ट्राई कर लो। iota raised to 6 क्या हो जाएगा? -1. iota raised to 7
इसी को I से मल्टीप्लाई कर दो, then that will be minus I, right? Then iota raised to 8, it will be 1. तो हमने आयोटा के क्या किए, अलग अलग पावर्स लिए, बट यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सी बात है जो हमें देखनी चाहिए, ये है कि वो जो आयोटा के पावर्स है कुछ समय बाद साइक्लिकली रिपीट हो रहे हैं, आई रेज टू 1, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेज टू 4, इसके बाद ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, इफ यू कैन ऑब्जर्व, राइट? ये जो पैटर्न है काफी ध्यान से देखो, ये रिपीट हो रहा है ना? यस, बिल्कुल हो रहा है. सो कैन आई मेक अ जनरल स्टेटमेंट? तो जनरल स्टेटमेंट क्या होगा, आयोटा रेज टू 4 के बाद सभी जो पावर्स है दे रिपीट आफ्टर सम इंटरवल, राइट? सो आयोटा रेज टू 4k प्लस r, iota raised to 4k plus r, so that r can be, if I put r equal to 0 पे iota raised to 4k हो जाएगा, iota raised to 4k, and that will be equal to of course 1 हो जाएगा. Then if I put r equal to 1, फिर क्या बन जाएगा ये, iota raised to 4k plus 1 means this value will come I. If I put r equal to 2, अब मैंने यहाँ पे r equal to 2 रखा है, तो 4k plus 2 मतलब I square हो जाएगा ना, and what is the value of I square? It is -1. And lastly, if I put r equal to 3, ये हम जनरल फॉर्म बना रहे हैं, r equal to 3 पुट किया तो 4 का मल्टीपल प्लस 3, that will be -I. यस, काफी सिंपल सा था, आसान सा था. आई होप सबको मजा आ रहा है, राइट? अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे जो भी हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ाई किया, राइट? सो लेट्स सी, डू वी हैव एनी प्रॉब्लम्स? यस, सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट प्रॉब्लम. सो हियर in the set of these problems we have the first question A, which is telling us that I raised to 57. So हमने क्या किया है, हमने एक जनरलाइज फॉर्म बनाया, I raised to 4k plus something. तो मुझे क्या करना है, 57 का सबसे नियरेस्ट 4 का मल्टीपल मुझे ढूंढना है, which is less than 57. ऐसा कौन सा नंबर निकल के आता है, I raised to 56, right? 56 को 4 डिवाइड कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, राइट? दोनों के पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड होते हैं मल्टीप्लिकेशन में. सो 56 plus 1 is 57, right? But because this is the multiple of 4, can I write it like this? I raised to 4 whole raised to 14 into I raised to 1, I ही होता है, हमने यहाँ पे देखा था, ये चेक करो फिर से. I raised to 1 क्या होता है, I होता है, and I raised to 4 होता है 1. So अभी हमने जो नॉलेज गैदर किया है उसके हिसाब से क्या मैं ये कर सकता हूँ, I raised to 4 है 1 into I, तो अपना फाइनल आंसर क्या बन गया, I. So this is our answer for this I. तो हमने काफी इजीली I raised to 57 का वैल्यू क्या किया, इवैल्यूएट किया, राइट? सो वेल डन. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल, I raised to 58. सो I raised to 58 पे क्या होगा, 58 ही था ना, नो 128, सॉरी माय बैड. 128. So the first thing you need to check कि ये 4 का मल्टीपल है या नहीं है. मुझे यहाँ पे 12 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, so it is a multiple of 4. So can I write it like this, I raised to 4 whole raised to 32. और हमने अभी क्या पढ़ा था, I raised to 4 होता है 1, so 1 raised to 32 हो जाएगा 1. That is your answer. As simple as that. Isn't it interesting? Right. So let's take one more example that we had. Another example अपने पास था I raised to 29. अच्छा ये देखो, ये तो हमने काफी आसानी से कर लिया. तो ये जो एग्जाम्पल बनेगा I raised to 29 plus 1 upon I raised to 101. This is a very interesting question that we have here, 29 and 101.
So I raised to 29 plus 1 upon I raised to 101. This was the question, right? So for this question, what we can do is I need to find the nearest multiple of 4 near 29, and I know for sure it's 28. So for 28, what I can do, I can write it like this: I raised to 28 into I raised to 1 plus 1 upon इसका क्या किया जाए, 101 का क्या किया जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100 into I, because I know 100 is a multiple of 4, right? 100 is a multiple of 4. So this for sure is 1, and this is going to be I plus 1 upon I. Now you must think, what should I do after that? So always keep in mind, whenever you get iota in the denominator part, you should never leave it alone in the denominator part. Why? Because it doesn't look good. So we'll always try to remove this iota. And how are we going to remove this iota? By multiplying and dividing by I. So iota is I, and plus iota upon I into I will be I square. And what is I square? I square is nothing but minus 1. So this will become I minus I, which is nothing but 0. Maza aaya? Yes. So we got the answer as I minus I 0, right? So this was the third question, and let's see what was the fourth question that we had. Look at this one. I raised to 100, I raised to 101, I raised to 102, and I raised to 103. So I'm saying I, you can call it iota raised to 100, iota raised to 101, iota raised to 102, and iota raised to 103, right? So for this particular part, tell me students, how you are going to solve it. Are you going to solve it by the conventional method that first you'll find this, first you'll simplify this, and then add? Or is there a smarter way to do it? Is there a smarter way? Yes, of course there is. So to solve such kind of problems, I'm going to tell you one small trick that is going to help you in so many problems. Why I'm saying so many problems and this small tricks works, because this particular chapter, complex number, has a lot of weightage in your mains, and it has even more weightage in your JEE advanced. So the weightage is around somewhere around, in mains it's almost 4%. So it means if you have 25 questions, one question is surely come from complex number, right? And for advanced it's almost 6 to 8%. So advanced has a more weightage, right? And यहाँ पे एक और बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम जो पढ़ रहे हैं, इसके बाद एडवांस के लिए हमें कुछ और अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे. वो हम तब पढ़ेंगे जब वी हैव साउंड नॉलेज अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स. तो उस समय वो थोड़ा आगे जाके 12th में जाके हम पढ़ेंगे. पर अभी के लिए ये जो बेसिक है, वी नीड टू मास्टर आवर बेसिक्स, राइट? सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में मुझे एक चीज दिख रही है, ये क्या हो रहा है? कॉन्सेक्यूटिव पावर्स दिख रहे हैं ना आयोटा के, 100, 101, 102 and 103. And now if we go back to our original slide over here, let me erase some part. तो अपना यहाँ पे वैल्यू क्या क्या था, एक बार रिपीट करवाना. ये था आपका माइनस आई और ये था आपका 1, राइट? तो ये भी तो कॉन्सेक्यूटिव पावर्स की है ना, 1 2 3 4. अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस आई रेज़ टू 4. तो आई का वैल्यू आई होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है आई, और आयोटा रेज़ टू 4 का वैल्यू होता है 1. सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फाइनली बचेगा क्या? 0. सो अगेन, कैन आई मेक अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट फ्रॉम दिस result that we found just now? And what is the generalized result I can make? I can say that
the sum of 4 consecutive powers of iota is always 0. ये याद रखो और अपने नोटबुक में भी लिख लो. Sum of 4 consecutive powers of iota is always 0, right? Okay. So now let's get back to our question. So can I say value of this is 0? Value of this is 0. No need for solving. We have solved within a second because we know this property, right? Okay, fantastic. Now let's move forward, and these are the this is how you can solve. C part we got 0. Then for D part you can see you can also solve by this method, but it will take a little extra time. So to save up the time, we know the property now and we can solve within seconds. All right, perfect, wonderful. And the same thing we proved just now. What is it? Prove that the sum of any 4 consecutive integral powers of iota is 0. Yes, हमने अभी प्रूव किया ना. Yes, तो क्या होगा? I plus I square plus I cube plus I raised to 4 is always a 0. You can take any number, iota raised to 400 plus iota raised to 401 plus iota raised to 402 plus iota raised to 403. Again, this will add up to 0, no doubt about it. So now let's see, after this we have, okay, अभी simple problem काफी कर लिए. Now it's time for थोड़ा अच्छा problem, थोड़ा प्यारा problem. और problem क्या है? Summation of k equal to 1 to 12 I k plus I k plus 1. तो यहाँ पे होता क्या है, बहुत बार बच्चे ऐसा देख के डर जाता है. हमें क्या करना है? हमें डरना नहीं है. तो इसको एक साथ सॉल्व करने से अच्छा क्या मैं इसको सेपरेट करके सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ. और कैसे सॉल्व करना है इसको सेपरेट? तो इसको खोल दो, ब्रैकेट को निकाल दो और इसको अलग अलग लिख दो. सो लेट्स सी, लेट्स डू दैट. समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 12 I k equal to 1 12 I k plus 1. Now I see something magical. And what is that? Now that I have two summations, I see the summation starts from 1 and it goes till 12. And just now what we have learned? We have learned the sum of consecutive powers of 4 consecutive powers of iota is 0. तो कहाँ तक जा रहा है आपका समेशन? आपका समेशन जा रहा है 12 तक ही जा रहा है ना? हाँ. So I know I raised to 1 plus I raised to 2 plus I raised to 3 plus I raised to 4 0. I raised to 5 plus I raised to 6 plus I raised to 7 plus I raised to 8 0. I raised to 9 I raised to 9 I raised to 10 I raised to 11 and iota raised to 12. Again a 0. तो इसका वैल्यू क्या बन गया? 0. और ये कहाँ से शुरू होगा भाई साहब? ये होगा 2 से. सो I स्क्वायर से लेके I13 तक चलेगा. बट अगेन चार की ग्रुप बन रहे हैं ना, एंड वी नो द सम ऑफ 4 consecutive टर्म्स और पावर्स ऑफ आयोटा इज 0. तो ये भी क्या बन गया? 0, राइट? तो आंसर क्या आया? 0 आया. एंड वी सॉल्व्ड इट विद इन लेस देन 30 सेकेंड्स. तो हमने क्या किया? एक्सपांड नहीं किया. हमने क्या किया? स्मार्ट तरीका यूज किया एंड वी गॉट द आंसर 0, राइट? Okay, wonderful. So that was a good question. I would recommend to come and revisit this question. इसको एक बार revisit करो. काफी बेसिक सा है, सिंपल सा है, प्यारा सा है, but it's going to help you a lot. देखो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बड़ा सा एक्सपेंशन किया. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेथड रॉन्ग है. बिल्कुल ये मेथड सही है, but it takes a lot of time, right? तो एक प्रॉपर्टी कैन सेव यू a lot of your time, and we finally got the answer 0. Wonderful. Okay, अब थोड़ा डरावना सा क्वेश्चन आ गया. क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि कुछ तो है -1, राइट? So for कुछ तो है -1, how are we going to solve this question? So for that मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो.
पर मेरे दिमाग में अभी ये आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, 4 टर्म दिख रहे हैं, कॉमन निकाल लो, 4 टर्म दिख रहा है, कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा रेज टू 586, अंदर क्या बचेगा, आयोटा रेज टू 6 प्लस आयोटा रेज टू 4 प्लस आयोटा रेज टू 2 प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू 584 divided by the same thing we have to do in the denominator as well। तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में ये टर्म कॉमन आ जाएगा, तो इसको निकाल लेते बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा रेज टू 576 ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा, 582, 582 में क्या होगा, 76 4 6 आयोटा रेज टू 6 प्लस आयोटा रेज टू 4 प्लस आयोटा रेज टू 2 ही बनेगा ना, हाँ, प्लस 1, और ये एक टर्म बच गया, इसको भी लिख देते हैं, इसको क्यों छोड़ना है, 574 और ये बन गया -1। नाउ ऑब्जर्व, मैंने इनको अभी कुछ छेड़खानी नहीं की है, मैंने इनको अलग से साइड में बिठाया। पहले इनको निपट लेते, क्यों इनको निपट लेते, पहले i रेज टू 6 का वैल्यू मुझे पता है कितना होता है, i रेज टू 6। नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स कि i रेज टू 6 का वैल्यू क्या होता है, i स्क्वायर मतलब -1 हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा, आयोटा 4 पता है हमें, +1 होता है, इसका वैल्यू होता है -1 और ये तो 1 ही है, तो सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, और 0 × 0 0, तो वैसे ही ये भी 0 हो जाएगा, तो बचे कौन, ये दो लोग, तो इन दो लोगों को हम ऐसे लिख सकते हैं 584, ये डिवीजन में जाएगा, और डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में दोनों के पावर जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम सीधा वही लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा रेज टू 584 माइनस 574, तो 574 का वैल्यू जो है दैट इज आयोटा रेज टू 10 -1। नाउ यू टेल मी, डू यू नीड माय हेल्प टू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू 10? कैन यू टेल मी? यस, आयोटा रेज टू 10 का वैल्यू हो जाएगा आयोटा रेज टू 8 प्लस 2, तो आयोटा रेज टू 8 प्लस 2 का वैल्यू होता है -1, -1 हो जाएगा -2, राइट। तो ये दिखने में काफी डरावना था, पर हमने काफी आसानी से सॉल्व कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हमारा आंसर है आंसर ऑप्शन बी, राइट। तो देखते हैं कि और कोई मेथड है क्या सॉल्व करने का। यस, -2 इज द करेक्ट आंसर। यस, उन्होंने भी सेम चीज किया है। नाउ डाउट टाइम, if you have any doubts you can ask me your doubts right away on the topics that we have learned so far. Yes students, any doubt you can ask me right away. All right, perfect. So everybody has understood till this part. Now let's move forward and let's see what do we have in our bucket now. तो अभी हमारे पास एक डाउट है, what is the value of iota raised to 0, iota raised to 0. So you can find out by yourself, or you can tell me the answer. I'll wait for like 15 seconds. Yes, तो iota raised to 0 होता है, anything raised to 0 is 1, even though it's a complex number, कोई नंबर मैटर नहीं करता, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर है, किसी का भी पावर 0 कर दो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, iota raised to 0 is 1. Now we have another doubt over here. If square of a number is positive, then how square of iota is negative? क्योंकि बेटा हमने क्या किया है, आयोटा को कैसे डिफाइन किया है, आयोटा का हमने डिफाइन करते ही जब किसी ने मैथ्स बनाया, जब किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा आगे एक बार बाहर देखिए, टीचर है तुम्हें सॉल्व कर देता हूँ, पूछ लो, एक टी शर्ट में क्या है। सो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर कर दूं तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, राइट। तो इसीलिए आयोटा स्क्वायर जो होता है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट।
Perfect. So now let's have one quiz question, and in this quiz question we have iota. If iota or I is equal to square root of -1, then what is the value of 1 plus iota square plus iota cube plus minus iota raised to 6 plus iota raised to 8 is equal to what? अभी अभी हमने सब बेसिक पढ़ा है, वही बेसिक का यूज करके हमें क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू. आई थिंक योर टाइम इज अप, सो लेट्स सी इसको क्या कर सकते हैं हम. ये तो होगा फॉर श्योर 0. आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये 0 हो गया. आयोटा क्यूब होता है, क्या होता है -i. माइनस आयोटा रेज टू 6 क्या होता है, माइनस आयोटा रेज टू 6 होता है आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा +1 और आयोटा रेज टू 8 1. तो आंसर क्या आ गया अपना 2 -i. तो कौन सा आंसर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ऑप्शन ए. आई थिंक काफी सारे बच्चों ने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, सबको अभी यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड नाउ एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट. I believe everybody is confident while solving questions or dealing with powers of iota, right? So let's see the answer. Yes, the answer is option A. Perfect. अभी एक देखो, ये काफी कॉमन सा डाउट है. आई एम नॉट श्योर कितने बच्चों को ये डाउट आया है, पर ये डाउट जरूर आना चाहिए. एंड व्हाट इज दैट, इफ आई राइट स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -5. हमने एक बचपन में स्कूल में एक चीज पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी होता है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ ई बी. एम आई राइट? सबने पढ़ा है, सब स्कूल गए ना. हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. तो क्या मैं ये सेम लॉजिक जो है यहां पे लगा सकता हूं, -3 इंटू -5 हो जाएगा +15. ये का आंसर आया. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो अभी हमने आयोटा पढ़ा उसको लगाएंगे, ये हो जाएगा √3i, ये हो जाएगा √5i, और हमें पता है √3 √5 हो जाएगा √15, और आयोटा हो जाएगा -i. तो ये हो गया -√15. तो मुझे बताओ ये ग्रीन सर्कल और ये जो ऑरेंज सर्कल है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? एनी गेस? यस, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. तो ये वाला जो है भाई, ये बिल्कुल ही गलत है, और ये जो है ये बिल्कुल ही सही है. और क्यों सही है? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी लगता है ना, ये बस पॉजिटिव नंबर्स के लिए लगता है. डज नॉट होल्ड बोथ व्हेन ए एंड बी आर नेगेटिव. तो इसमें से एक नेगेटिव हो तब भी चल जाएगा बात, पर क्या होना चाहिए स्ट्रिक्ट कंडीशन, अगर ए बी दोनों के दोनों नेगेटिव है और दोनों स्क्वायर रूट साइन के अंदर है या फिर रेडिकल साइन के अंदर है, इसी को हम रेडिकल साइन भी बोलते हैं. तो रेडिकल साइन के अंदर दोनों के दोनों नेगेटिव है, सो वी कैन नॉट यूज दिस फंडा जो हमने फंडा पढ़ा था 10th तक का. तो अभी फंडे थोड़े चेंज करने पड़ेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ अभी हमारे पास काफी अच्छा साउंड नॉलेज है व्हाट इज आयोटा एंड व्हाट इज पावर्स ऑफ आयोटा. नाउ वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने वो जो रहता है ना स्टार्टर पैक, वो खत्म कर लिया. तो अब हमें क्या करना है, अभी हमें एक्चुअल में देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्क्राइब कैसे करते हैं और उसका अलजेब्रा क्या है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट is complex number and how do we describe it. So let's say we have x and y real numbers, then the numbers in the form x plus iy is called a complex number. So x plus iy, ये क्या बन गया, complex number. तो ये जो है ये दोनों हमेशा एक साथ रहता है. हम इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि हमने 10th तक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर्ड्स करके, राइट? 2 + √3, उनको हम सर्ड बोलते थे. तो यहाँ पे ये हमेशा क्या होता है, जोड़ी में आते हैं, x प्लस आयोटा y. तो इस कंबाइंड फॉर्म को हम क्या कहेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट अ कॉम्प्लेक्स
नंबर, राइट। नाउ यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा यूजुअली हम z से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो कॉमन सा पार्ट बन गया मैथ्स का कि व्हेनेवर वी सब कॉम्प्लेक्स नंबर हम उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो xy टर्म है इसको हम, ये जो रियल पार्ट्स है, सो z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, z is a complex number and what is the complex number? x plus iota y। तो ये x और y जो है ये क्या है? रियल नंबर्स। एंड इफ आई हैव टू टेक वन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो एग्जांपल, अगर मैं 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा लिख दूं, 2 प्लस 3 आयोटा, ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। देन 3 प्लस 4 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। देन 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 4 आयोटा। देन 5 प्लस 0 आयोटा। ये सब के सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये जो एक्स वाई है, these are real numbers and we already know what are real numbers, right? Okay, so now that we are able to define or describe what is a complex number, as you can see, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो दो हिस्से होते हैं, कौन से वाले दो हिस्से? ये वाले 2 और 3 आए। तो इनमें क्या बनता है? एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट को मैं कैसे लिखूंगा? रियल ऑफ z1। तो रियल ऑफ z1 जो है ये तुम्हारे यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी ऑफ z1, वो बन जाएगा, कितना है? आयोटा के आगे कौन सा नंबर लिखा है? 3 लिखा है। सो दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। उसी तरीके से मैं z2 का भी लिख सकता हूं। रियल पार्ट ऑफ z2 क्या बन जाएगा? 1। फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या बन जाएगा? -2। उसी तरीके से तुम मुझे बता सकते हो इसका z3 का रियल पार्ट क्या है? 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4। उसी तरीके से हम z4 को भी देख लेते हैं कि उसका जो है रियल पार्ट कितना है? 5 है, और इमेजिनरी पार्ट है 0, राइट। तो अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है काफी अच्छे तरीके से समझ में आया है, राइट। तो हम अभी इसके बाद, इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या क्या सीखा आज की क्लास में। हमने आज की क्लास में सीखा कि आयोटा क्या होता है, पावर्स ऑफ आयोटा क्या होता है, फिर हमने उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए। पहले हमने सिंपल से स्टार्ट किया, फिर थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम लिया, डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ाया, फिर उसके बाद हमने ये सीखा आयोटा के बाद कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा का क्या इंपॉर्टेंस है, आयोटा का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो अभी इसी के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या हम उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और जो कि हम बिल्कुल कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। So thank you class, thank you for joining, and let's see you in the next class.